Saket. I'm the project coordinator of IndaStar Scholarship Program Northeast, and so we have all gathered here for the scholarship award ceremony of 6 students who were selected for the scholarship under the IndaStar Scholarship Program. So IndaStar Scholarship Program is a CSR initiative of IndaStars Limited and is being implemented by Sishu Sarathi in partnership with various partner organizations across the Northeast. In Arunachal Pradesh, we have partnered with Arunachal Pradesh Parents Association of the Disabled. With their help, we have been able to get the applications of the students, and we have been able to reach out to the students who are in need of financial support. So the scholarship provides the financial supports towards their higher education, whatever courses beyond the higher secondary level, higher secondary graduation, professional courses, and also beyond. जो भी उन लोगों का फ़ीस पेमेंट है वो IndaStar स्कॉलरशिप प्रोग्राम के को लोग पेमेंट कर देते हैं, ताकि उन लोगों को विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस दे कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन. The only requirement that we have is above the benchmark disability of 40% and above matriculation. So these are the students who we are supporting, and today we have awarded the certificates to the students who have been selected from Arunachal Pradesh. There will be a short induction program also to explain them the procedure of claiming their scholarship and how this will go on, since the scholarship is till the completion of their education, from now till the completion of their education. So they need to understand the procedure, ये किस तरीके से उन लोगों को जो फीस पेमेंट है वो होगा और कैसे उन लोगों को पता चलेगा, so that hassle free वो लोग पढ़ाई कर सके. So I thank Arunachal Pradesh Parents Association of the Disabled for helping us out to implement the scholarship program in the Arunachal Pradesh. So I really thank Sishu Sarathi, IndaStar, for taking up this venture. We are really lucky being the part of local partners of the Sishu Sarathi Organizing Committee. We are trying our best to give help to the disabled communities, those who want to pursue higher studies, taking the opportunities being financed by the IndaStar Limited and are being organized by the Sishu Sarathi. So being a local partner, हम लोग भी मीडिया में लास्ट टाइम अरुणाचल प्रॉन्ट में आया था, तो ऐसा एडवर्टाइज करता है, तो टाइमिंग देता है कि फिलअप करने का ऑनलाइन. जो नहीं कर पाता है मैडम लोग से हम हेल्पलाइन का नंबर देता है, हम लोग जो समझता बताते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन कराता है, क्योंकि बाहर से लोग आके डायरेक्ट नहीं कर पाता है. तो सर अभी तक कितना आपके बॉडी टीम की तरफ से कितने बेनिफिशियरीज को आप लोग ने हेल्प आउट कर किया होगा? अभी का ये साल में 5 तो एग्जैक्टली मिलेगा बोला, 6 तो था एप्लीकेंट ना. तो हमारा यहाँ में ये नेटवर्क कमी का वजह से या IT में हमारे यहाँ पे लोग बहुत सी जगह में साइबर ये सब नेटवर्क नहीं होने का वजह से वो लोग नहीं कर पाता है. वो सब बच्चे लोग रिमोट एरिया में हैं. हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टाइप का पॉलिसी प्रोग्राम डिपार्टमेंट में करने से अच्छा है. ये तो प्राइवेट CHR मोड में कर रहा है, तो इस टाइप का बहुत सा यहाँ में इंडस्ट्रीज़ काम कर रहा है, ये प्राइवेट कंपनी से, उन लोग भी इस टाइप का ये एक्टिविटीज़ कराने से स्टेट के लिए बहुत भलाई होगा. हमारा डिसेबिलिटीज़ कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा. हम यही चाहता है कि हमारा हर बच्चा जो राइट टू एजुकेशन होने का बावजूद भी नहीं पढ़ पा रहा है. अभी यहाँ में स्कूल भी नहीं है, तो बच्चा है जैसे कि मेंटल रिटार्डेड लोग है, बहुत सा ऐसा कुछ डिसेबल कम्युनिटीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है. CRC अभी ये वो भी नहीं हो पा रहा है, और हमारा गवर्नमेंट भी इतना टेकअप नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकली में. बच्चा घर घर में बैठा है, राइट टू एजुकेशन डिप्राइव भी हो रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से बच्चे को, ऐसे बच्चे को. इसलिए आप लोग मीडिया लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छा आर्टिकल लिख के उन लोग को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिसेबिलिटीज़ कम्युनिटीज़ एंड बीइंग द पेरेंट्स, हम लोग बहुत सफर होता है एज ए गार्जियन, एज ए केयर गिवर्स. हम लोग का भी बहुत सा तकलीफ होता है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने से और भी बर्डन हो जाता है, और जो अर्निंग मेंबर नहीं होता है उसका लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है. तो इस चीज़ को हम लोग का गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम बना के कुछ बेनिफिट दिलाने से अच्छा है. ऐसे फैमिली लोग को स्पेशल केसेस देखने से ठीक है. और गवर्नमेंट जॉब में 12 हायर सेकेंडरी में था, तब उसमें हम अप्लाई किया था. अभी फिर क्या कोर्स का? अभी मैं कॉलेज का. आपको ये इस NGO से क्या क्या फैसिलिटीज या कितना अमाउंट फंड या क्या क्या सपोर्ट मिलता है, उसको थोड़ा शेयर करिए. जो हम लोग स्कूल जो कॉलेज में हम लोग फीस जमा करते हैं, जो एडमिशन का फीस या और एग्ज़ाम फीस का जो हम जमा करते हैं, तो उसको हम लोग को फिर वापस NGO का तरफ से वापस हम लोग को मिल जाते हैं. तो अभी आप कभी गवर्नमेंट का थ्रू हेल्प मांगने की कोशिश किया? हाँ, तो हम गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज में हम ये किया था, लेकिन अभी कुछ
मेरा डॉक्यूमेंट्स का कारण से हम कॉलेज अभी थोड़ा पेंडिंग होके रखा है, वापस स्टार्ट करेगा उसको।